warm welcome to everyone present here. I am Monica Tiwari, event coordinator and teacher at Prerna Vidyalaya. On behalf of entire Prerna Vidyalaya family, I extend a heart welcome to all of you. On the occasion of higher learning at Prerna Vidyalaya, we are deeply honored to have with us our distinguished guest of honor, Sri Rupesh Verma ji, an alumnus of Indian Institute of Technology Guwahati, former Chief Manager at ICICI Bank, Director of Shiksha Academy Bemitara, and a dedicated educator who has inspired countless students through his knowledge, experience, and guidance. We also warmly welcome Shri Avdesh Patel Bhaiya ji, Director of Samadhan Mahavidyalaya, the President of Chhattisgarh Private School Association, and mentor of our school. Please give a huge round of applause to our guests. Moving ahead, I would like to invite Ayush Pitaji from class 12 to come forward and present a bouquet to our esteemed guest Sri Rupesh Verma ji. I would also like to invite Kartikeya Bittaji from class 11 to present a bouquet to Sri Avdesh Patel Bhaiya ji. अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व विद्यालय के विषय में छोटी सी जानकारी आपके समक्ष व्यक्त करना चाहूँगी। प्रेरणा विद्यालय की शुरुआत सन 2017 में छत्तीसगढ़ बोर्ड एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में हुई थी। वर्तमान में प्रेरणा विद्यालय एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है जहां 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रेरणा विद्यालय के लिए यह वर्ष अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। कक्षा 10वीं का यह CGPSC के अंतर्गत 5वां एवं अंतिम वर्ष था। कुल 30 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थी अर्थात 50% स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए तथा 20% स्टूडेंट्स ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसी प्रकार कक्षा 12वीं का यह CGPSC के अंतर्गत तीसरा एवं अंतिम वर्ष था। 12th में कुल 17 स्टूडेंट्स रहे, उनमें से 17% स्टूडेंट ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया तथा 30% स्टूडेंट ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। मैं बताना चाहूँगी कि 10 CG बोर्ड में जिले के टॉप 10 मेरिट सूची में हमारे विद्यालय से 6 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं के एक विद्यार्थी ने राज्य स्तर पर 12वां तथा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में कक्षा 12वीं से 2 विद्यार्थियों ने क्रमशः जिले में 7वां एवं 9वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इन उत्कृष्ट परिणामों के साथ CGPSC के अंतर्गत विद्यालय की सफल यात्रा पूर्ण हुई तथा इस शैक्षणिक सत्र से अब प्रेरणा विद्यालय पूर्ण रूप से CBSE विद्यालय के रूप में संचालित होगा। Now I move on the today's session and I would like to invite Anjaneya Bittaji from class 12 to share the background of today's higher learning class. A very good morning to our esteemed guest, principal, teachers and fellow students. Welcome to our Prerna Higher Learning Speaker Series, where the main aim is to inspire our students towards academic excellence rooted in human values. In June of 2019, Prerna Vidyalaya launched the Prerna Higher Learning Institute for focusing on in-depth learning for classes 9 to 12. For this purpose, rich subject content was selected and disseminated to the students through audiovisual means and through our subject mentors from across the nation. In addition to this, weekly higher learning classes were held for teaching leadership, team building and other soft skills. In 2022, Prerna Higher Learning Institute established the Prerna Higher Learning Speaker Series. In this program, the school invites inspiring public personalities every month to meet our senior students. These sessions help us to understand the values, qualities, and efforts needed to become successful and responsible individuals in society. In the past, we have had the honor of interacting and listening to Mr. Pradeep Gupta ji, IPS Addition Director General of Police Chhattisgarh, Mr. Ranbir Sharma ji, IAS Collector of Bemitra, Dr. Geeta Vemuganti ma'am,
a famous ophthalmologist, Dean of Hyderabad Medical College and stem cell researcher and scientist, Mrs. Geeta Patel ji, a district judge, Mr. Kumar Rajesh ji, a renowned journalist, Mrs. Ashrita Vemuganti Nanduri, an actor, and many more. Thank you, sir, for gracing us with your presence today. We look forward to listening to your life journey and learning important and valuable life lessons. Thank you, sir, and once again, welcome to Prerna Vidyalaya, a school inspiring students to live with fulfillment in family and society. Thank you. Thank you, Vitaji. Let's proceed. Before handing over the mic to our esteemed guest speaker, I would like to briefly introduce him to our audience. Today, we are honored to have among us an inspiring personality who has made remarkable contribution in the field of education, banking and social service. श्री रूपेश वर्मा जी, आप वर्ष 2015 में आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग में आईआईटी भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान है, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग लगभग 123 है और भारत में नंबर 1 रैंक पर है। इसके साथ ही मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूँगी जो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं और आज किसी उच्च पद पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसे सीईओ ऑफ सुंदर पिचाई जी, सीईओ ऑफ गूगल एंड अल्फाबेट, एनआर नारायणा मूर्ति जी, इन्फोसिस के को-फाउंडर जिन्होंने भारतीय आईटी उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीपेंद्र गोयल जी, फाउंडर ऑफ एंड सीईओ ऑफ जोमेटो, के राधाकृष्णन जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, जिनके नेतृत्व में भारत का ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चेतन भगत जी, जो एक लोकप्रिय लेखक हैं, जिन्होंने 5 Point Someone, 2 States जैसे बेस्ट सेलर बुक के माध्यम से युवाओं के बीच पढ़ने की रुचि को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार आईआईटी गुवाहाटी की ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग 349 तथा भारत के शैक्षणिक संस्थान में 9th नंबर पर है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करना स्वयं में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि सर ने आईसीआईसीआई बैंक में चीफ मैनेजर जैसे प्रतिष्ठित पद पर कार्य किया है और वर्तमान में शिक्षा एकेडमी बेमेतरा के डायरेक्टर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह एकेडमी बच्चों को जी मेंस एंड एडवांस और नीट जैसे एग्जाम के लिए तैयार करती है। बैंकिंग और कॉरपोरेट जगत में सफल करियर के साथ आपने लगभग 5 वर्षों तक महाराष्ट्र की प्रसिद्ध प्रयास एकेडमी में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, जहां आपके निर्देशन से अनेक छात्र जेई मेंस और नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफल हुए। कोविड काल में जब शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, तब आपने अपनी दादी जी की स्मृति में तीर्थ लर्निंग सेंटर की स्थापना की और गांव तथा आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया। आपके मार्गदर्शन से वहां से भी अनेक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। शिक्षण और मार्गदर्शन के साथ साथ आप एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। आपके 500 से अधिक शैक्षणिक वीडियो और 68,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके माध्यम से आप हजारों विद्यार्थियों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचा रहे हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, शिक्षाविद, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व श्री रूपेश वर्मा जी का हम सभी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। So now, without any further delay, I would like to hand over the mic to our esteemed guest speaker, Sri Rupesh Verma ji. Welcome, sir. Thank you so much, Didi. Thank you so much, Avdesh भैया, डायरेक्टर दीदी। दीदी आपको भी थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच बिकॉज यू आर गोइंग टू बेयर विथ मी फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। आप सबको मेरी बातें सुननी है
and if you feel bored, you can raise your hand and ask questions. आज ये जो स्पीच देने का मुझे अवसर मिला है आप सभी को, I see this as a very big opportunity. You all are very young, very bright, brilliant minds, and I have got this golden opportunity to, you know, interact with you, to share my journey with you, to speak about some stories which were really struggling, but eventually, ultimately, they ended up, you know, inspiring many others. In my student life, as well as after that in my professional career, I did see बहुत सारा struggle at my personal level as well as at the, you know, at the team level. वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली. उनके बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा और आफ्टर दैट विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. मुझे ज़्यादा खुशी होगी जब मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँगा. जैसे दीदी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया आप सभी को. I have studied in a, you know, engineering college called IIT. I graduated in 2015 as a mechanical engineer और उसके बाद मेरी corporate journey शुरू हुई. Latest I was working for ICICI Bank almost for 5 years और फिर at the moment last month only मैंने शिक्षा अकेडमी की शुरुआत की अवधेश भैया के साथ मिलकर बेमेतरा में. सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा that is about the journey of a boy who started, you know, in a very ordinary way, who started his journey in a very humble, you know, circumstances. This is a story of a boy when there was no internet, when there were no good roads which could reach to the villages. गांव में तब कच्ची सड़कें हुआ करती थीं. जब मानसून आता था, जैसे इट इज़ अबाउट टू कम नाउ, तो उस गांव तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था. वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल तक जाना, रेगुलर जाना, इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, है ना. तब बहुत अच्छी स्कूल्स भी नहीं थे. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वर एक्सट्रीमली रेयर. प्रोबेबली पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा होगा उस ज़माने में. Back then there were very limited options और challenges were like mountains. उन सब challenges को navigate करना बहुत मुश्किल होता था. The only thing which could, you know, push somebody was कि उसके अंदर खुद, you know, commitment होना चाहिए, discipline होना चाहिए, आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, right? तो that story is about me only. मैं स्कूल में था साल 2000 से लेकर साल 2011 तक, 11-12 साल, 1919 से 2011 तक. Those were my 12 years of schooling. Initial years were very difficult, very ordinary boy, not as bright, teacher के सामने not as, you know, as promising कि हर सवाल का जवाब दे या फिर क्लासरूम में टॉप परफॉर्म करके दिखाए एंड ऑल. दोज वर नॉट माई थिंग्स. मेरी जर्नी एक्चुअली बिगिन हुई विथ अ ड्रॉप ईयर. मेरे फादर ने देखा कि आई एम बीइंग वेरी ऑर्डिनरी, बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसे 1 साल ड्रॉप करते हैं और इसका एक क्लास रिपीट करते हैं. तो आई स्टडीड माई क्लास 1 ग्रेड ट्वाइस. मुझे क्लास 1 में ही रिपीट कराया गया विथ अ डिफरेंट स्कूल. वो एक समय था जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि अगर आई डोंट बिकम, यू नो, हार्ड वर्किंग हेयर आफ्टर, अगर मैं पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होता हूँ तो प्रोबेबली ऐसी चीज़ें वापस फिर से होंगी. अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो शायद सेम क्लास मुझे फिर से पढ़ना पड़े. तो दैट वाज अ टाइम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कि वो चीज़, इस चीज़ की एहसास हुई कि अगर अच्छा पढ़ाई करूँ मैं, अच्छा यू नो परफॉर्म करके दिखाऊँ, तो शायद I can do better and I'll feel more comfortable. जैसे ये सोच मेरे अंदर आई, मैं फिर कभी रुका नहीं. उस साल से लेकर क्लास 12 तक I came first
always in all exams in my classrooms forever till class 12th. And that self-awareness to do good in classes, do good in school, do good in exams, give the motivation कि अब तो outstanding ही रहना है हमेशा, outstanding रहना in the sense कि एक बार झटका खा लिया है, एक बार एक क्लास को रिपीट कर लिया है, एक बार ड्रॉप ले लिया है, मुझे वापस ड्रॉप नहीं लेना. तो यूजुअली व्हाट हैपन्स आफ्टर स्कूल ना, कॉलेज के लिए रास्ता बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE का एग्जामिनेशन है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो नीट का एग्जामिनेशन है, दे आर डिफिकल्ट, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे आर. और उसमें आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक ड्रॉप, है ना. तो आई नेवर वांटेड टू डू दैट. मैं एक बार ड्रॉप ले चुका था, आई नेवर वांटेड टू रिपीट दैट. और फिर मैंने बहुत सही समय रहते इस बात के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, इवन दो देयर वाज नो इंटरनेट. इंटरनेट के कारण अभी लाइफ आसान हुई है. आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो कि हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, राइट. अगर आप प्लान करो कि मुझे 10 साल बाद स्पेस में जाना है, तो प्रोबेबली यू कैन रीच टू द स्पेस. यू एग्री विथ मी? We can find anything in internet, we can plan accordingly, we can see a lot of videos, है ना. वहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरीज दिख जाएंगी कि किसने गांव से शुरुआत की एंड नाउ ही इज डूइंग बिग इन हिज करियर. ये चीज़ें अभी पता चल जाती हैं. बैक देन देयर वाज ओनली वन थिंग इन 2000s, दोज वर न्यूज़पेपर्स एंड व्हाटएवर बुक्स वी कुड रीड इन द क्लासेस. तो that was how my journey was being developed with my struggle. जैसे मैंने आपको बताया, struggle were circumstances. I came from a very ordinary kind of background. हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई की हमने. और जब IIT JEE के प्रिपरेशन के बारे में मैंने पहली बार सोचा, तो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि वो सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में थी. In fact, today the most popular books which can make you prepare for tough exams like IIT JEE or NEET for say, they all come in English medium. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. बट मैंने अपना असली स्ट्रगल तो बचपन में ही देख लिया था. As I said, I repeated my class 1 grade in the very early stage of my school days. तो what was this one thing that really took me ahead? एक तो थी मेरी वो thinking कि I have taken a drop, I won't take a drop again ever. Second thing were, there are certain qualities which are required. I mean, there are certain things in you which take you ahead in your career. One of them can be कि how hardworking you are, है ना. जैसे हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने का मौका मिले. फॉर एग्जाम्पल, whoever are in class 12th in this hall today, who are in class 12th? Okay, probably 10-11 of you are in class 12th. तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी, दिस इज द ओनली ईयर. वापस आएगा क्लास 12th, स्कूल वापस आएगा, इट विल नेवर कम, राइट. तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन लीव अ गुड इम्प्रेशन, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ. क्योंकि आपको हमेशा याद रहेगा कि क्लास 12th में आपने मेहनत करा, आपने बहुत अच्छा अचीव किया, एंड इट विल स्टे विथ योर सेल्फ स्टीम. आपको हमेशा अच्छा लगेगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आई ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, शायद 20-30 साल बाद भी आपको याद रहेगा कि क्लास 12th में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी. आई वॉज इन प्रेरणा स्कूल एंड आई स्कोर्ड मोर देन 90% प्रोबेबली. तो व्हाट हैपन्स ना बच्चों, हमारे अंदर की क्वालिटीज़ जो हैं, उनमें से उस क्वालिटी को हमें पकड़ना है, उस क्वालिटी को हमें डेवलप करना है विच कैन बिल्ड आवर करियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूलिंग हुआ सरस्वती शिशु मंदिर में, राइट. सरस्वती शिशु मंदिर इज स्कूल चेन अक्रॉस इंडिया जो शिक्षा के साथ संस्कार में बहुत फोकस करती है.
उनका भी एक ऐसा एम रहा है कि वैल्यू एजुकेशन शुड बी द पार्ट ऑफ कोर करिकुलम ऑफ ऑल द स्कूल्स एज वेल एज द कॉलेजेस एज वेल। तो वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ करता था, दे कॉल्ड इट सुलेख। सुलेख का क्या मतलब होगा, हु विल टेल मी? सुलेख किसको कहेंगे? सोचो, थिंक, व्हाट इज सुलेख? हाँ, सुलेख मतलब लेख से संबंधित कुछ, लेख मतलब लिखना, सुलेख मतलब सुंदर तरह का लिखना, राइट? तो ये कंपटीशन ऐसा होता था, जैसे कान्हा ने बताया, एक तरह का डिक्टेशन। लेकिन जो लिखने वाला है वो उसे कितनी खूबसूरती से लिखता है ना, उसकी हैंड राइटिंग बेसिकली कितनी अच्छी है, उसी को सुलेख कहा जाएगा। तो ये कंपटीशन होता था सरस्वती शिशु मंदिर में हर साल, और वो इस नाउ दैट दिस इज ए स्कूल ऑफ चेन, तो इट यूज्ड टू हैपन अक्रॉस स्कूल्स, इंटर स्कूल लेवल कंपटीशन इट यूज्ड टू हैपन, पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन अगेन टू स्टेट लेवल। आप लोग समझ पा रहे हो किस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं? जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स में भी होते हैं कंपटीशन, लाइकवाइज। तो ये एक सॉफ्ट स्किल वाला कंपटीशन था, सुलेख कहा जाता था उसे। अगेन आई वाज वेरी लकी इनफ, सरस्वती माँ की मेरे ऊपर कृपा थी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। बैक देन इन माई स्कूल डेज हिंदी में मैं बहुत खूबसूरत लिखा करता था, और इन कॉम्पिटिशन्स में आई यूज टू अगेन डू वेरी वेल। जिस भी लेवल पे मैं पार्टिसिपेट करता था, आई यूज टू गेट यूजुअली फर्स्ट रैंक, अदरवाइज सेकंड और थर्ड रैंक, ऐसा मेरा परफॉर्मेंस रहता था। तो वो जो राइटिंग वाली चीज है, दैट वाज पार्ट ऑफ माय हैबिट। अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ लेट्स से फॉर 2 आवर्स, उसमें से 1 घंटा मुझे लिखना पसंद था। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हो? फिजिक्स जब पढ़ने बैठते हैं या फिर मैथ्स जब पढ़ने बैठते हैं, तो कौन है जो सिर्फ किताब पढ़ता है? प्रोबेबली नोबडी, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट्स विच नीड मोर प्रैक्टिस, राइट? When you solve questions, when you crack those equations, when you derive the expressions, then only you say कि हाँ I'm studying maths. ऐसा ही है? Please raise your hand. Maths को ऐसे ही पढ़ते हैं? Maths को we cannot read write novel. You all agree? हाँ, thank you so much. तो the thing is कि this quality, this writing ability, है ना? This writing ability was actually, eventually becoming my strength. Listen carefully. There is a strong message I want to, give to all of you. Writing is something, even after schooling we should keep doing. Writing से हमारे thoughts reflect होते हैं, हमारे convictions का हमें खुद पता चलता है. Writing you cannot do just like that. Writing you do because you believe in something, right? In my case, writing was my hobby because I was doing well in it. मुझे writing करने का reward मिलता था, इसलिए I was in love with writing. How that helped me, advancing in my career, in my student life, even beyond that, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. थोड़ा ध्यान से सुनना. जब मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन शुरू करी थी, as I said, as a Hindi medium student, it was very difficult, है ना? किताबें they all were in English. जब मैं इंस्टीट्यूट में गया पढ़ाई करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, they were teaching in English only. एक्सप्रेशंस लिखना या फिर जो भी चीज़ दो वो बता सिखा रहे थे, या फिर आसपास के जो बच्चे थे they all were in English. I mean English medium students. But मेरा ये जो हैबिट था about writing, that was doing wonder for me. That was doing wonder क्योंकि क्लासरूम में I was going blatantly writing everything. Coming back I was again whatever I was learning, जो भी मैं देख रहा था, सीख रहा था क्लास में, जो नोट्स थे उनको मैं लिख के समझ रहा था. तो धीरे धीरे जो बैरियर था लैंग्वेज का, in 1 year क्लास 11th it started vanishing. राइटिंग से मुझे समझ में आया कि फोर्स को अगर मैं बल कहूँ या फोर्स कहूँ, हाउ डज इट मैटर. आज के समय में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही जानते हैं. फैन को आप लोग फैन कहते हो, पंखा कहते हो, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, राइट? लाइकवाइज मैग्नेट को आप चुंबक कहो, इलेक्ट्रिसिटी को आप विद्युत कहो. ये सब चीज़ें इतनी
इजी टू कॉम्प्रहेंड है कि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या था, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेस दोनों में, चाहे आप मेडिकल साइड में हो या इंजीनियरिंग साइड में हो, इन दोनों साइड द थिंग विच मैटर इज प्रैक्टिस। थ्योरीज विल बी देयर, दे आर कॉन्स्टेंट। न्यूटन ने जो लॉ बताए वो वैसे ही रहेंगे, फैराडे का जो लॉ है वैसे ही रहेगा, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर देयर आर अदर थिंग्स जहाँ पर आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे होगे, वहाँ पे व्हाट दे चेक इज योर प्रैक्टिस। These are multiple choice question based examination. MCQs are there. There are numeric answers. They were not asking me to write essays. Getting my point? तो मेरा वो जो writing habit था, it was eventually helping me in cracking those questions and practicing more. मुझे अगर ऐसे लिखने के लिए probably कहा जाता, I would have failed in my first attempt, और शायद मेरा career ना बना होता, definitely. तो the learning from my journey was कि there was one strength in my student life, that was writing, and उसी writing skill के कारण I kept on practicing. जो जितना ज़्यादा practice करेगा वो उतना अच्छा उन एग्जाम में perform करेगा। and जैसा दीदी बता रही थी कि these institutes IITs का global level में rank है I think somewhere 300. IITs are globally reputed. Google के जो CEO हैं वो भी IIT से हैं। तो this is one way जहाँ पे career can be built really bright. Something that I chose, something that I loved. I'm not saying कि हर किसी को इंजीनियर बनना चाहिए, हर किसी को मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, या फिर इस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। That is totally up to you. You decide what you want to become in your life. जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, हमेशा अपने वैल्यूज़ के साथ associated रहो। कभी भूलना मत कि from where you actually come. आपने क्या सीखा है, आप क्या लेकर आना चाहते हो इस दुनिया में। We are supposed to remain grounded forever. What I am trying to tell you is कि how did I reach where I reached and what was my journey. My journey was extremely difficult, as I told you multiple times, but there was one strength in that journey was in our education, whatever we study, the writing was essential part, and luckily I was getting reward for whatever I was writing, and that led me to do more practice, and that led me to crack national level examination. First attempt में crack करना was actually super difficult. When I was studying, my elder brother was 1 year ahead of me, Mr. Rahul Verma. He's a lieutenant in Indian Army. तो one thing he always taught me, उन्होंने एक चीज़ हमेशा मुझे बताई, सिखाई। इनफैक्ट जब भी वो सेमिनार में आते हैं वो कहते हैं, अगर academics में in your school exams, आप अपने board exams में अगर बहुत अच्छा करना है, स्कूल में आपको मज़ा आना है, अगर तो what is that one thing that you should do, कि क्लासरूम में आप बैठे हो like a pro, क्लासरूम में आप बैठे हो और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ आप समझ रहे हो, लिख रहे हो, इनफैक्ट बीच बीच में दीदी से, मैम से क्वेश्चन भी कर रहे हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट है करके। When can this happen? जब आप उस चैप्टर को एक दिन पहले खुद देख कर आओ। हमारा माइंड अनफेमिलियर चीज़ों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। जिस चीज़ों को पहली बार देखोगे उसके बारे में क्या सवाल करोगे, क्या सीखोगे। लेकिन अगर आप जो चैप्टर क्लास में डिस्कस होने वाला है उसे एक दिन पहले घर पर आकर घर पर हॉस्टल पर थोड़ा सा रिव्यू करके जाते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है। इन सवालों को घर में पूछ लो, और जब वो डिस्कशन क्लासरूम में होगा देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आई हैव लर्न दिस चैप्टर। और स्कूल में तो सीखने के लिए आते हैं, अग्री विथ मी, राइट। तो दिस वाज दैट सेकंड थिंग जिसके कारण मुझे पढ़ाई में कॉन्स्टेंटली सफलता मिली। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना वाज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। एक तो मैंने बताया आप लोग को मुझे लिखना बहुत पसंद था। इनफैक्ट इवन टुडे जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है
आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, है ना. यूट्यूब में मैंने जो अपना करियर बिल्ड किया उसका रीज़न ये था कि हमेशा मैं अपने थॉट्स को पेंसिल डाउन किया करता था, पेन डाउन किया करता था. एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि आप इतना जो लिखते हो फिजिक्स के बारे में, आपकी जो इतनी फीलिंग्स हैं उसको बोलना शुरू करो. तो फिर दैट चैनल स्टार्टेड डेवलपिंग, है ना. और फिर उसमें हमने काफ़ी समय तक काम करके इस तरह से अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया. There are few more things associated with my student life or professional journey से which I want to share. क्लास 11th की बात है, सॉरी क्लास 7th की. क्लास 7th like I was 12-year student, है ना. वो एक ऐसा साल था जब I was doing really great in school and sports. जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं उनमें भी मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहता था. I used to win a lot of अवार्ड्स. बट पेरिफेरल चैलेंजेस थे, एज इन कि मेरा जो गांव है वहाँ से स्कूल का डिस्टेंसेस 6 किलोमीटर, और वो रोड भी अच्छा नहीं था. साइकिल चला के हम लोग जाते थे. बारिश का मौसम आया, कभी हेल्थ इशू हुआ एंड ऑल. चैलेंजेस तो बहुत थे तभी. समहाउ दैट 1 year आई मैनेज टू गो टू स्कूल फॉर 100% डेज. मैं क्लास 7th के अटेंडेंस रजिस्टर में 100% प्रेजेंट था. तो दिस इज अ लेसन ऑफ कंसिस्टेंसी. व्हेन आई वाज 12 year old, है ना, इस चीज को मैंने रियलाइज किया कि वो मेरा इतना मेमोरेबल साल क्यों था. क्योंकि दैट टाइम स्कूल हैड बिकम माई सेकेंड होम. स्कूल मेरे लिए दूसरे घर जैसा था. आई नेवर फेल्ट कि छुट्टियां कब आएंगी, कब दिवाली आएगा, कब समर वेकेशन आएगा, कब एग्जाम्स विल गेट ओवर. आई नेवर फेल्ट दैट. स्कूल हैड बिकम माई सेकेंड होम. तो इट इज़ अ लेसन ऑफ कंसिस्टेंसी. आई कुड सी बहुत सारे बच्चों ने आज नोटबुक्स एंड पेंसिल लेके आए हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट सम ऑफ यू आर टेकिंग नोट. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वर्ड कंसिस्टेंसी. This thing ना does miracle, I'm telling you. In your life, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, follow this one single thing. It's called consistency. भले थोड़ा करो, लेकिन consistently करो. Probably हर दिन करो. आपकी जो भी लाइफ में बनने की ख्वाहिश है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, one small step at a time can make you reach anywhere in this universe. That Wonder Woman Kalpana Chawla, she came from a very ordinary town. She reached to the space, with Indian flag flying high. तो उसने अपने एम्बिशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. She kept on moving consistently. तो अगर कोई चीज है जो सच में मैजिक करती है, that is this word called consistency. Don't compromise with it. और कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे, आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे. आई एम टेलिंग यू. क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन जग चुका है कि मुझे सुबह स्कूल जाने से पहले, लेट्स से अगर 9 बजे स्कूल खुल रहा है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है. इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मैं 2 घंटे उठूंगा या उठूंगी, एंड आई जस्ट प्रिपेयर कि क्या क्या क्लास में डिस्कस होने वाला है, उनका एक क्विक रिव्यू करूंगी सारे सब्जेक्ट्स का. उसके लिए आई नीड 2 hours. दैट विल मेक यू वेक अप अराउंड 5 AM in the morning. राइट? तो डिसिप्लिन आ जाएगा क्योंकि आपके पास एक एम है. योर एम इज टू रिमेन कंसिस्टेंट. you want to move towards your ambitions, your life journey slowly, gradually, but consistently. तो वहाँ से वो जो learning I developed about consistency, it really helped me even beyond my student life. जिस इस YouTube चैनल की हम बात कर रहे थे, इस पे हमने काम करना शुरू किया था एट द टाइम ऑफ कोविड के समय. आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तब बच्चे घर में आते थे, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज देन, है ना. तो उनको तब पढ़ाना वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉकडाउन्स एंड ऑल दे गॉट अपलिफ्टेड, आई हैड टू मूव टू माय कॉर्पोरेट ऑफिस. तब मुझे मुंबई शिफ्ट करना था. बट दीज स्टूडेंट्स दे वर ऑलवेज इन टच विथ मी. बच्चों का वो रिक्वेस्ट हमेशा से था कि नहीं भैया आप पढ़ाते रहो, पढ़ाना आपसे सीखना ज़रूरी है, आपसे हम लोग सीखेंगे तो हमें
सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने में, करियर में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो दैट इज़ वेयर वी फिगर्ड आउट कि लेट्स गो ऑनलाइन, यूट्यूब में हम लोग काम करना शुरू करते हैं एंड वहाँ से फिर जो भी कंटेंट बनेगा, जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चों को मिलेगा, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, दे कैन डू वेल इन देयर एग्जाम्स। While I was being part of very challenging corporate life हमेशा इतनी smooth नहीं रहती, there are perks, rewards, but at times it becomes very difficult. The thing which I remembered while working on my corporate career as well as in this education space was again the same thing, consistency. We decided to post one single physics video every Sunday, right? एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए हफ्ते भर काम करेंगे, उसे संडे को पोस्ट कर देंगे, है ना। अब जो बच्चे उसे देख रहे थे उसमें उनको अच्छा लगेगा, फीडबैक जैसे भी मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। दिस थिंग वी केप्ट ऑन डूइंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years. I remember the exact number of weeks that we worked were like 190 weeks. हर संडे हमारा एक वीडियो पोस्ट हुआ एंड people who knew me कि मैं full time corporate job में हूँ, still I am posting that one video, giving my sweat, my blood, my energy, my soul, my everything to make that one video great. इसका response was again mind blowing. I was receiving comments, messages, in fact mails from abroad also. Somebody who was seeing me there in Canada as well as in America, they were just texting me, what you are trying to do is actually inspiring, we admire your consistency, right? तो I would never say कि मैं बहुत बड़ा big time YouTuber बन गया या फिर I changed lives and all. I wouldn't say. I humbly accept that there are 68,000 subscribers at the moment in the channel, and this came over a period of those 4 years. The thing which remained was संडे को पोस्ट करना है, मतलब करना है। उसके अकॉर्डिंग मेरा पूरा दिन प्लान होता था, 2 दिन रिसर्च होना चाहिए, 2 दिन उसमें बहुत बढ़िया वीडियो का शूटिंग होना चाहिए, दिन आखिरी के 2 दिन हम उसमें एडिटिंग करेंगे, लास्ट दिन विल पोस्ट इट, और फिर उसके बाद फीडबैक का सेशन चलता था कि हाउ वी कैन मेक दिस वीडियो बेटर। तो हियर आफ्टर अगर समथिंग दैट वाज एक्चुअली बिल्डिंग मी एज अ एजुकेटर और समथिंग द मैसेज आई वांटेड टू गिव टू अदर्स कि हार्ड वर्क करना क्यों चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, अगेन दैट वाज कमिंग फ्रॉम दैट कंसिस्टेंसी। तो प्लीज़ डू रिमेंबर, आप जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो, बस अपने एम्बिशन के साथ, अपने गोल और उन स्मॉल स्टेप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। दैट वाज ब्रीफली अबाउट मी। आई टोल्ड यू कि वो क्या चीज़ें थी जिसने मुझे लाइफ में आगे बढ़ाया, हाउ आई did well in my student life, how did I reached to premier institution of this country. इसका जो I would say fruits कहना चाहिए, मेहनत का जो फल है वो मुझे हमेशा मिलता रहा, इवन माय कॉर्पोरेट करियर। वहाँ पे भी जब मैं ICICI बैंक मुंबई में चीफ मैनेजर बना, आई वॉज 29 years old, प्रोबेबली द यंगेस्ट इन ICICI बैंक की हिस्ट्री में। तो ये सब रिवॉर्ड्स हमेशा मिलते रहे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आई हैड गॉट दैट हार्ड लेसन, आई हैड लर्न दैट हार्ड लेसन। अभी आपने जिन चीज़ों को अपने अंदर सच्चे मन से इनकलकेट कर लिया, अपने अंदर डाल ली, इट विल स्टे विथ यू फॉर एवर। इस बात को ध्यान में रखो। अगर आपने अभी से हम्बल रहना सीख लिया, अगर आपने अभी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली उस बात को समझ ली कि माई कॉम्पिटिशन इज ओनली विथ मी, मुझे बस अपने आप से इम्प्रूव करना है, अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है, राइट? लाइफ में यू विल नेवर बिकम अपसेट, लाइफ में यू विल नेवर एवर फेल। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू लर्न बिग लाइफ लेसन्स एंड उसका आपको जो परिणाम फल मिलेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। मूविंग ऑन, मैं आपको कुछ पैशन की, कुछ स्ट्रगल की, कुछ हार्ड वर्क की, कुछ सक्सेस की ऐसी कहानियाँ बताना चाहूँगा विच हैज़ कम अगेन फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, बट उन्होंने सही में बहुतों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। इवन दे बिकेम एग्जाम्पल्स जिनको आज हैप्पीली भी रिमेंबर, जिसके बारे में आज बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आई स्टार्ट विथ, देयर वॉज दिस कॉलेज जूनियर ऑफ माइन back in
माई IIT गुवाहाटी डेज हम लोग सब क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पे मेरा एक जूनियर था नेम्ड गौरव अग्रवाल, मतलब थोड़ा सा एक्सेंट्रिक आई वुड से, नॉट एज यूजुअल, मिलने में बात करने में वेरी फनी, कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करता रहेगा, बहुत कैजुअल इन हिज अप्रोच, बट ही हैड हिज बिलीव्स। उसका अपना तरीका था, जो वो सोचता है वो उसमें फोकस रहेगा एंड ऑल, दैट वाज हिज वेज। वहाँ से मुझे ऐसे लगता था कि मतलब उसकी कंपनी हम सब इंजॉय करते थे वाइल प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ही यूज्ड टू क्रैक अ लॉट ऑफ जोक्स। वन थिंग दैट आई नोटिस्ड इन हिम इज कि ही इज अमेजिंग इन हिज ओन वेज। कॉलेज से निकलने के बाद यूजुअली प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड इन IITs, तो उसका एक जगह पे जॉब लगा इन दिल्ली। जॉब लगते ही 1 महीने में उसने मुझे ऐसे बताया कि भैया यहाँ पे मन नहीं लगता कॉर्पोरेट में, पता नहीं मैं कंटिन्यू तो नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके ही पुट डाउन हिज पेपर्स और उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। इट वॉज द ईयर 2019 व्हेन आई फाउंड आउट कि वो UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मतलब उसके ग्रेजुएशन के शायद 2 साल 2.5 साल बाद वो UPSC के लिए मन लगा के पढ़ रहा था। तब मैंने उससे बात करी और कहा कि हम लोग उसे बॉन्ड कहते थे कि बॉन्ड, अब कोई इस दुनिया में कंपनी है नहीं जो तुझे जॉब दे सकती है, तो शायद तू UPSC जैसे ही किसी मैराथन के लिए ही बना है। दिस इज समथिंग आई सेड। UPSC एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर ग्लोबल लेवल में एग्जाम्स की बात की जाए तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ग्लोबल लेवल एग्जामिनेशन UPSC। और हमारा बॉन्ड उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। दैट गाय secured all India rank 85 very next year across India। 85 रैंक उन्होंने सिक्योर की एंड ही इज एन IPS ऑफिसर टुडे। दिस गाय हु यूज्ड टू क्रैक रैंडम जोक्स, दिस गाय जो अपने कॉर्पोरेट जॉब में 2 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाया, दिस गाय जिसकी सोच बहुत अलग थी। हम सब हैरान थे, IPS ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 85 एट द एज ऑफ 25 years। नाउ द थिंग इज UPSC में को मैराथन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें विंटेज लोग होते हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। इनफैक्ट उसके पेपर को जो एवेलुएट करने वाले होते हैं दे आर ऑल्सो PhDs। तो whoever is genuinely extremely good in his subjects, in his topics, overall in his career, they only can make this kind of achievement। तो this very junior of mine, जब उसने मुझे मैसेज करके बताया कि भैया ये मेरा रैंक है, मैं IPS बन रहा हूँ करके, that was a heart warming moment for me, literally। हम सबके सब उसके वापस फोटोज देखने लगे फेसबुक निकाल के, अरे ये यहाँ पे दिख रहा है क्रिकेट हमारे साथ खेलते हुए, देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। Now he is an IPS officer। So one life lesson that we get from his journey is we all are different। We all have our own strengths, our own weaknesses, our own thinking। But one thing that remains is how good we are as a human intellectual being। हम चाहें लाइफ में कुछ भी बनना चाहें, but one thing that would always remain with us, that will keep us moving, is how humbled we are for whatever opportunities we have। हमारे पास जो opportunities है उसे हमें खुशी खुशी देखना चाहिए। सबको एक समान opportunity नहीं मिलती, I totally agree, but आपको जो opportunity मिली है that is a golden opportunity। हमेशा इस बात को याद रखो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, वो आपको हमेशा वो रास्ता नहीं मिलेगा, बट जब आपके पास वो रास्ता है you should be very happy। You all agree with me? We all are different. We have our choices, our hobbies, our interests. They all are different, but we all can do brilliant in our lives. And that is what we learned from that junior of mine who is now an IPS officer. Moving on, back to COVID days, when I started teaching, इट वॉज माई स्मॉल हॉल। हमारे घर में छोटी सी हॉल जैसी जगह है जहाँ पर बच्चे आया करते थे।
यूजुअली आसपास के बच्चे थे। धीरे धीरे जब लोगों को बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, स्कूल तो अभी और ज़्यादा टाइम तक बंद रहेगा, कोचिंग और नहीं खुलेगा, बट बोर्ड एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होंगे ही, तो बच्चों का नंबर बढ़ने लगा। इस बीच हमारे उस क्लासरूम में एक लड़का आने लगा फ्रॉम नॉट सो फार, एक टूटे से साइकिल में, है ना। मतलब उसका साइकिल वाज इन सो बैड कंडीशन कि ऐसा लगता था कि आज बस चलेगा, कल इस साइकिल में चलना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ही यूज्ड टू कम इन दैट बाइसिकल, है ना। अब जैसे मैंने बताया वो जगह भी छोटी थी और लोग भी आके बहुत सारे आने लगे थे, तो स्पेस कंस्ट्रेंट था वहाँ पे। बट दिस गाय ही ऑलवेज ट्राइड टू रीच द क्लास बिफोर टाइम। अगर 9 बजे क्लास शुरू होने वाली तो 5-10 मिनट पहले आके अपनी जगह बना लेता था। ही यूज्ड टू स्टडी जब तक क्लास शुरू नहीं हो जाती। कई बार ऐसे भी होता था, कभी वो लेट हो गया या फिर दूसरे बच्चे और जल्दी आ गए तो क्लास में जगह ही नहीं है, तो उसको खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो वापस चले जाए। तो उसका कहना था कि नहीं, मैं खड़े होके मैं लिख लूँगा, नोट्स बना लूँगा, बट आई वोंट लीव, मुझे पढ़ाई करना ही है करके। वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड ही वॉज हैविंग। उसके घर की फैमिली की कंडीशंस वर नॉट एज गुड, नॉट एट ऑल एज गुड। तो उसका एक्चुअली सिचुएशन हम लोग देखते थे, हम लोग कोशिश करते थे कि उसे किसी टाइप का ट्रबल मत हो। इनफैक्ट हिज फादर वाज इन टच विथ माय पेरेंट्स एट टाइम्स। कभी कभी ज़रूरत पड़ने में थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर दिया करते थे हमारे घर से। तो वी वर अवेयर कि ऐसी सिचुएशन है। बट दिस गाय, उसका डिटर्मिनेशन, वाओ, मतलब लिटरली ही इंस्पायर्ड ना दैट विसिनिटी ऑफ ऑल दोज विलेजेस अपने आसपास के। वो बच्चा स्कूल तो जाता नहीं था कोविड के कारण, हमारे पास पढ़ता था और उसके बाद जितना समय बचे वो घर में पढ़ाई किया करता था। ऑल दोज वाइल ही यूज्ड टू स्टडी। एक दिन मैंने उसको क्लास में पूछा, आपको सब कुछ पता रहता है, सब नोट्स लिख के रखे रहते हो, घर में जाके क्या करते हो? ऐसा मेरा मतलब जेनरिक सवाल था। उसने कहा, सर मैं घर जाके सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मैं बस पढ़ाई करता हूँ, सोता हूँ, क्लास आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खाना वाना जो भी हुआ। बट प्रोबेबली ही वाज स्टडिंग 15 to 16 आवर्स इन अ डे, है ना। हिंदी मीडियम का बच्चा था। अगेन ही गेव हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू JEE मेन। He cracked in his first attempt the JEE main. NIT रायपुर में उसका एडमिशन हुआ। We all were extremely happy क्योंकि वो हमारा पहला ही बैच था जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें ऐसा बच्चा आया, उसने अपनी दिन रात को एक करके NIT रायपुर में सिलेक्शन लिया। After 4 years जब उसकी जॉब लगी, फिर उसने मैसेज किया कि सर मेरी जॉब लग चुकी है। He got a package of 12 lakh rupees from Jindal Steel. इस पैकेज में उसे 3 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस मिला। तो द मोमेंट ही रिसीव्ड दिस मनी, उसकी पूरी फैमिली गदगद हो गई कि सर हम ना अपने एक साल में 3 लाख रुपए नहीं कमाते, हमने कभी एक साथ 3 लाख रुपए देखा नहीं है, और आप लोगों ने जिस बच्चे को पढ़ाया उसको जॉब शुरू करने से पहले 3 लाख रुपए की सैलरी मिली है करके। I would say this was a defining moment in my very small educator life. As a teacher, this was a defining moment. एक बच्चे को जिसको मैंने अपने पहले ही बैच में पढ़ाया, डिसिप्लिन फॉलो करते हुए देखा, उसने लिटरली अपने फैमिली के फ्यूचर को ही चेंज करके रख दिया। तो दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, द नेक्स्ट थिंग केम, कोविड का दूसरा साल 2021। सेम थिंग रिपीटेड। बच्चों का फिर से रिक्वेस्ट कि भैया आप प्लीज़ क्लासरूम शुरू करो। हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि कहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, कहाँ पे इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक हॉल को बुक किया हमने चुपके से। एक दुकान थी, उसके ऊपर थोड़ा जगह था, उस हॉल को बुक किया। किसी को बताया नहीं, सिर्फ बच्चों को पता था कि वहाँ पे क्लास लगती है और क्लास की टाइमिंग शुरू होती थी सुबह के 6 बजे। दोज वर विंटर डेज। तो विंटर डेज में 6 बजे अंधेरा ही रहता है। तो हमारी कोशिश थी 6 से 8 पढ़ा के हम बच्चों को घर भेज दें, किसी को पता ही मत चले क्या हो रहा है। वो क्लासरूम भी पूरा फुल हो जाता था। इट वॉज अ हॉल बट इट यूज टू गेट कम्प्लीटली फिल्ड बिकॉज वहाँ पे बच्चे 25, 30, 40 किलोमीटर तक, पता नहीं हाउ दे गॉट द मैसेज, दे यूज टू कम देयर।
तो मेरे लिए थोड़ा सा वरिंग था कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, अगर अथॉरिटीज़ को पता चलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है करके. बट सम हाउ बाई गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू कंटिन्यू दोज क्लासेस. जल्दी शुरू करते थे और जल्दी छोड़ देते थे बच्चों को, है ना. दिस टाइम देयर वाज दिस गर्ल, हर नेम वाज जानवी. वो एक फार प्लेस से आती थी और बीच में अगेन रास्ता बहुत डिफिकल्ट था. उसे बस कुछ सुबह मिलती नहीं थी, है ना. लाइक 25 किलोमीटर मान के चलो, जहाँ से उस क्लासरूम तक ट्रैवल करके आना पड़ता था. अब कनेक्टिविटी इज अ वेरी बिग चैलेंज. समहाउ किसी को बोल के, किसी को रिक्वेस्ट करके, या फिर जो जल्दी से जल्दी जो बस मिल रही है उसमें बैठ के शी यूज्ड टू मैनेज टू कम टिल हियर. हर दिन वो बच्ची लेट होती थी क्लास में, और मैंने क्लास की टाइमिंग बहुत टाइट रखी थी कि इस बीच में आओगे तो भी पढ़ के सीख के रहोगे. ये बच्ची हर दिन लेट होती थी. एक दिन मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों होता है, आप हर दिन लेट क्यों आते हो. तो उसने अपने सिचुएशन को बताया कि सर मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे आने में प्रॉब्लम होता है, बस नहीं मिलता, रोड ख़राब है, जिस रोड में बस चलती है वो भी मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक पहुँचने में स्ट्रगल, तो आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है करके. तो पता नहीं, शायद वो सुबह 5 बजे घर से निकलती रही होगी और कोशिश करती होगी 6 बजे आने का, तो 6:30 बजे पहुँच जाती थी वो. तो दिस वॉज काइंड ऑफ हर सिचुएशन. एक दिन क्या हुआ, वो बच्ची पूरे क्लास के बीच में आई और लेट आई थी, बहुत रो रही थी वो. उन्होंने कहा कि मेरे हर दिन के स्ट्रगल को देख के मेरे घर वाले यहाँ मुझे भेजना नहीं चाह रहे. सर आप प्लीज़ मेरे फादर से बात करो कि वो मुझे आपके क्लासरूम में भेजें. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल, कि आप प्लीज़ मेरे पापा से बात करो कि वो मुझे आपके क्लासरूम में भेजें. तो दैट वॉज वेरी टचिंग. जब भी मैं सोचता हूँ मेरी आंखें थोड़ी भर आती हैं, है ना. उस बच्ची का स्ट्रगल वॉज नॉट लिमिटेड टिल देयर. हिंदी मीडियम की बच्ची थी वो. कोविड के बाद तो मेरा पढ़ाना बंद हो गया था, बस मैं ऑनलाइन रहा करता था. उसमें शी यूज्ड टू ज्वाइन ऑनलाइन. जब मैं क्लासेस लेता था तो वो ज्वाइन करती थी. हर स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर आई थिंक 3 years. वो कंटिन्यूसली नीट के अटेम्प्ट्स दे रही थी. शी यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, बट वो कट ऑफ तक पहुंच नहीं पाता था. अल्टीमेटली यू नो फॉर्चून टाइम केम फॉर हर. उसे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला फाइनली, एंड एट द मोमेंट शी इज़ परस्यूइंग हर डिग्री. बट व्हाट शी डिड इज शी सेट एन एग्जाम्पल कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप इन माई ड्रीम्स. उन्होंने अपने ड्रीम्स के साथ ना कॉम्प्रोमाइज नहीं की. एज आई सेड, थिंग्स स्टार्ट विथ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. उसका स्ट्रेंथ क्या था उस बच्ची का, कि पढ़ाई अगर करनी है, मेहनत करनी है, लाइफ में आगे बढ़नी है, तो हार्ड वर्क से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क. सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन, आपका खून पसीना. जस्ट 1% इट इज़ इंस्पिरेशन, है ना. इंस्पायर हम लोग जल्दी हो जाते हैं, बट उसे हमेशा मेंटेन करना इज़ नॉट दैट ईजी. तो इन जो बच्चों की कहानियाँ हम लोग सुन रहे हैं, उनसे सीख ये मिल रही है कि अगर लाइफ में कंटिन्यूसली अच्छा करना है, खुश रहना है, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो मेरे हिसाब से गो विथ योर स्ट्रेंथ्स. आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने डिटर्मिनेशन को डाइल्यूट मत होने दो. एंड इन दैट ना, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, योर कंपनी मैटर्स अ लॉट. अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पर लाइक माइंडेड आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक माइंडेड आपका स्टडी सर्कल है, जहाँ पे यू ऑल आर एमिंग टू डू वेल, यू ऑल आर एमिंग टू डू वेल इन let's say board exams, let's say extracurricular activities, let's say schools, let's say annual function, let's say in that music competition, whatever it can be, let's say in yoga. So that company actually makes the difference. And एक चीज़ जो मैम ने actually मुझे information pass on करी कि there is a collectivism का thought यहाँ पर. आप सभी को बहुत ही deep values सिखाई जा रही हैं यहाँ पे. Those things mean a lot in longer terms. इस बात को आप ध्यान रखो.
एक चीज़ मुझे अवधेश भैया ने बताया कि प्रेरणा स्कूल इज मोर अबाउट कॉम्पिटेंस एंड लेस अबाउट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर भैया ने जैसे ये बात मुझे कही, मुझे 3 इडियट मूवी का वो फेमस लाइन याद आया। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इट, अवधेश भैया तो डेफिनेटली सुने होंगे। काबिल बन गए ना दोस्त तो कामयाबी खुद आपके पीछे आएगी। कॉम्पिटेंस आ गया आपके अंदर तो कंपटीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यू अग्री विथ मी दीदी? तो दिस इज व्हाट वी ऑल शुड एम टू डेवलप इन आवरसेल्फ। हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुद हमारे पास आए, नॉट द अदर वे अराउंड। दीदी कितना समय है मेरे पास? तो क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई वॉज सीइंग ऑल ऑफ यू, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली टू मी। आई होप कि आपको जो कहानियाँ मैंने बताई यू आर एबल टू रिलेट विथ इट। आई होप यू विल रिमेंबर देम। अब इसके बाद आई वॉन्ट टू पास ऑन द माइक टू यू एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। Peter, if you have any questions, please raise your hand and kindly mention your name and class. मैं क्लास 12 PCM स्ट्रीम से हूँ। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करते हैं और स्कूल होता है हमारा, तो उसमें एक बैलेंस नहीं बन पाता है, एक मतलब कंफ्यूजन आ जाता है कि किसको पहले प्रायोरिटी दें या फिर कैसा टाइम टेबल उसको मैनेज करें। तो उसके लिए अगर आप कोई टिप्स दे पाते तो बहुत अच्छा हो जाता। आप हॉस्टल स्टूडेंट हो? यस सर। तो स्कूल के बाद आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम? तो एंड द चैलेंज इज टाइम टेबल। यस सर। यू कैन टेक द सीट। सॉरी, योर गुड नेम? स्वाति। स्वाति। स्वाति ने जो सवाल पूछा एक्चुअली ये सभी के लिए है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस। टाइम टेबल मैनेज करना इजी नहीं है। आई बिलीव आप क्लास 11th या 12th में हो? सर क्लास 12th। क्लास 12th में, प्लीज टेक द सीट। तो क्लास 12th इज द फाइनल ईयर ऑफ स्कूल, है ना? एक ही साल है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है बोर्ड एग्जाम में भी। एट द सेम टाइम वट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसके लिए भी यू हैव टू बी रेडी। तो एक्चुअली ये टाइम टेबल को जिसने मैनेज कर लिया, ही इज द विनर, ही और शी इज द विनर, राइट? वॉट वी नीड इज द राइट स्ट्रैटेजी। हमें स्पेशली क्लास 12th में बहुत डिसिप्लिन और बहुत स्मार्ट रहने की ज़रूरत है बच्चों। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज कि कैसे कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट, राइट? यही है सवाल, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि स्कूल में भी यू आर डूइंग योर 100%, एट द सेम टाइम पैरेलल जो प्रिपरेशन चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो कहीं से भी। देन ओनली यू विल गो आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरे हिसाब से पहले चीज़ तो एक बेसिक टाइम टेबल रखो कि दीज आर माई स्कूल टाइमिंग्स 9 to 3। आफ्टर दैट जो भी आपके क्लासेस के टाइमिंग है, लेट्स से 5 to 7, 5 to 8, प्रोबेबली इवनिंग में ही होते होंगे, है ना? यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस, नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द सिलेबस, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस तो पूरा है। समडे अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपने कोई क्लास मिस करी, दैट डजंट मीन कि वो टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। नो एक्सक्यूजेस, कोई नहीं सुनने वाला। तो आपका एक बेसिक रूटीन तो होना चाहिए कि ये मेरा स्कूल टाइम, ये मेरा कोचिंग का टाइम, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम। वंस दीज टू थिंग्स आर डिसाइडेड, आपको अपने पूरे दिन भर के लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, लाइफ स्टाइल को, उसके अराउंड यू हैव टू मैनेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया, अगर 9 बजे प्रेरणा स्कूल में आपको आना है, विच मीन्स आपको 2 घंटे की सुबह पढ़ाई करनी होगी कि दिन भर में क्या क्या होने वाला है स्कूल में, कौन कौन से नए नए चैप्टर आने वाले हैं। अगर वो 2 घंटे की पढ़ाई करना है, इसका सीधा मतलब यह है कि सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। डू यू अग्री विद दिस?
2 घंटे अगर पढ़ाई करके स्कूल में पहुंचना है तो 5 बजे उठे रहोगे तभी तो कंफर्टेबली कर पाओगे सब चीज़। यहाँ पे मुझे अपना एक स्टूडेंट लाइफ का छोटा सा मोमेंट याद आता है। आई वॉज पार्ट ऑफ क्लास 12th ओनली। क्लास 12th में इंटायर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जिस दिन क्लास 11th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ टिल द टाइम आई रीच्ड फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठा करता था, एवरी सिंगल डे। मेरी क्लासेस थोड़ी लेट शुरू होती थी, 10-10:30 जाना होता था मुझे। रात को मैं सोता था रात के 11 बजे एंड आई यूज्ड टू वेक अप 6 AM इन द मॉर्निंग। 7 आवर का स्लीप, एक्सेलेंट कंसिस्टेंसी आई फॉलोड इन दैट इंटायर 1 ईयर। उससे क्या होता है, द बॉडी हैज़ a way to respond to your daily routines. We call it circadian rhythm. ये थोड़ा सा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स माइट हैव हर्ड। क्या होता है, आपकी स्लीप टाइमिंग, आपके सोने की टाइमिंग, आपके खाने का टाइमिंग एक बार आपने डिसाइड कर लिया, फिक्स कर लिया, तो योर बॉडी विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। 11 बजे आपकी ऑटोमेटिकली आंख लग जाएगी, बिना अलार्म के 6 बजे उठ सकते हो, बिना कहे आपको 1-1:30 बजे जो आपका लंच टाइम है, यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री। अगर दोपहर में नहीं सोने का हैबिट है, यू विल नेवर एवर फील स्लीपी। तो अपने बॉडी को ऐसे ट्रेन करो बच्चों की ये सर्काडियन रिदम आपके सपोर्ट में रहे। सर्काडियन रिदम सेज कि जो आपके स्टडी आवर्स हैं, जब आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, योर ब्रेन विल बिकम वेरी एक्टिव, ब्रेन विल बिकम डॉर्मेंट व्हेन इट इज योर स्लीप टाइम। Brain will become again very active when you are attempting some question paper, when you are giving some examination. So what I am trying to say is to catch up with all the hustle, जो इतना सारा सिलेबस, इतना सारा आपको कोचिंग और क्लासरूम और स्कूल की जो भाग दौड़ है, उसके लिए आपके पास एक बेसिक टाइम टेबल तो होना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि फॉलो अ टाइम ऑफ योर ओन। बॉडी क्लॉक कहा जाता है इसको। ऐसा बॉडी क्लॉक डेवलप करो, सोने टाइम में सो जाओ, उठने टाइम में उठ जाओ, पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करो, स्कूल का टाइम स्कूल का टाइम, कोचिंग का टाइम कोचिंग का टाइम। ऐसा करने से आई डोंट गारंटी कि आप एकदम 95% लाने वाले हो या फिर अपना बोर्ड एग्जाम क्रैक करने वाले हो। बट वन थिंग आई कैन से इज आप इस रूटीन में ना बीमार नहीं पड़ोगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि आप बीमार पड़ोगे। आपकी बॉडी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी in advance. That is how the biology works. तो उस थिंग को you keep in control. इससे ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आई कैन गारंटी, क्योंकि आप टाइम से चल रहे हो। आपका सुबह का टाइम है 2 घंटा पढ़ाई करने का, उस समय पढ़ाई करोगे। इज देयर इन एनी चांस कि क्या हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखने का कुछ मन हो गया, या फिर व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज इन सोशल मीडिया, इट विल नेवर हैपन, क्योंकि आपका डिसाइडेड है वो टाइम। These hours are meant for studies. These hours are meant for online classes. These hours are meant कि मैं खाना खाऊं और थोड़ा 10-5 मिनट रिलैक्स करूं। तो उस बॉडी क्लॉक पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोबेबली 1 month। एक बार कंट्रोल हो गया, फॉलो इट फॉर एंटायर ईयर। इट कैन डू मैजिक, इट कैन सर्टेनली डू मैजिक। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम नमस्ते। अपर्णा साहू है। अपर्णा। मैं क्लास 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप बताएं ICICI बैंक मुंबई में आप चीफ मैनेजर थे, तो कॉमर्स स्टूडेंट को कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होता है बैंकिंग में जाने, फील्ड में जाने के लिए? राइट। अपर्णा, प्लीज सिट डाउन। अभी क्या हो रहा है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, they are looking for graduates across all fields. ICICI बैंक भले एक बैंक है, लेकिन मुझे उसने एज अ इंजीनियर हायर किया था। Likewise, they hire, definitely they hire people from commerce background. They hire people from medical discipline also, medical officers they would need. There are corporate social responsibilities of the bank, वहाँ पे भी ठीक ठाक मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली अगर कोई टेक्नोलॉजी वाले साइड से है तो उनके लिए कॉर्पोरेट स्पेस में जाने के कई रास्ते हैं, क्योंकि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री आजकल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, देयर आर मल्टीपल वेज
देयर इज़ दिस नीस ऑफ माइंड, मेरी भतीजी हैं, मैंने बैंक में जाने के बाद उनको प्रिपेयर करने की कुछ चीज़ें बताई थी. देन देयर वर इंटरव्यूज़, फिर ट्रेनिंग का सेशन होता है. तो शी बिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, उनका ग्रेजुएशन था एग्रीकल्चर में, स्टिल उनका जॉब लगा ICICI बैंक में. तो जो चीज़ मैं आप लोग से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दिनों अब डिग्री ही एक वो होगा आपका एंट्री पॉइंट, ऐसा नहीं है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आती हैं प्रोवाइडेड कि आप अपने डिग्री में, अपने एजुकेशन में अच्छा करके रखो. आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, देर आर एक्चुअली बैंकिंग लेवल एग्ज़ाम्स, है ना. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग है जो वो कंडक्ट कराती है. मोस्ट ऑफ देम आर फॉर PSU बैंक्स. हमारा बैंक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक रहा है, तो वो क्या करते हैं, दे लुक फॉर ब्राइट कैंडिडेट्स, है ना, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, जो बोलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जो लोग अपने एजुकेशन, मतलब जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में यू कैन स्पीक फ्लुएंटली. तो इस तरह की चीज़ें जो जिन बच्चों के अंदर हैं उनका दे कंडक्ट इंटरव्यू. एक बार ये इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दे शॉर्टलिस्ट अ फ्यू ऑफ देम एंड दे ब्रिंग देम फॉर ट्रेनिंग. 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है. देयर इज़ अ डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पर ICICI बैंक के इस तरह के एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है. और उस ट्रेनिंग के बाद आप तैयार हो जाते हो इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए. देयर इज़ अ करियर पोर्टल जहाँ से आप खुद चाहो तो अप्लाई कर सकते हो. दूसरा तरीका है जब उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट. तो अगर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छे हैं, दे विल डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट यू, और इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलना इज एंड इट्स द नेक्स्ट स्टेप. तो वो पोर्टल आई कैन टेल यू, ICICI बैंक का करियर्स पोर्टल, जहाँ पे आप अप्लाई करके रख सकते हो. एज एंड व्हेन द वैकेंसी वुड कम यू कैन गेट द कॉल. बट सेपरेट एग्जामिनेशन वाला भी कोई सिस्टम नहीं है. ICICI बैंक कोई सेपरेट एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रही है एट द मोमेंट. मैं एक इंजीनियरिंग रोल में ही था व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, एंड मेरे साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था, एंड आई वाज रिक्रूटेड एज अ सीनियर मैनेजर. उसके 1 साल में ही मुझे प्रमोशन मिला था, एंड आई बिकेम द चीफ मैनेजर. तो व्हाट दे सी इज कि हाउ वेल यू हैव डन विथ वॉट एवर यू हैड. मतलब आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके कितने परसेंटेज रहे हैं. आपका अगर इंटरव्यू लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे करना चाहिए, बैंकिंग में आप अकाउंटिंग को कैसे ला सकते हो, तो यू शुड बी एबल टू स्पीक अबाउट इट. तो वो इंटरव्यू ही एंट्री पॉइंट होता है बैंक के लिए, स्पेशली ICICI बैंक के लिए. मेरा जवाब क्लियर है आपको? जी, थैंक यू. कुछ और जानना चाहोगे? और क्वेश्चन, जो चीफ मैनेजर होते हैं उनका मेन वर्क क्या होता है? प्लीज सिट डाउन. अगेन एज आई सेड, बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. ICICI बैंक का ऑपरेशन ना सिर्फ इंडिया में है, इट्स देयर इन अब्रॉड ऑल्सो. इनफैक्ट ICICI बैंक इज एग्रेसिवली ट्राइंग की फॉरेन फुटप्रिंट बढ़े. अभी हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंगेज होती है, इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि इकोनॉमीज आर लाइक मोर ग्लोबलाइज्ड. तो ICICI बैंक की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि अब्रॉड में उन्हें ज़्यादा ऑफिसेज हों. तो द ईयर आई ज्वाइंड, 1 साल में ही मुझे ऐसा कहा गया, इनफैक्ट वो मेल भी आया था कि ज्वाइन द इंटरनेशनल ज्योग्राफी. तब मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अदरवाइज दैट ऑफर वाज कमिंग फ्रॉम जर्मनी. उनको चाहिए ज़्यादा एडवांस लेवल के ग्रेजुएट्स टू इंटरनेशनल लोकेशंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होंगी और चैलेंजेस ज़्यादा होंगे. कमिंग टू जॉब प्रोफाइल कि एक चीफ मैनेजर करता क्या है, राइट. बेसिकली इन बैंक देयर आर मेजरली 2 टाइप ऑफ टीम्स. एक टीम होती है जिनका काम होता है, जिनको आप ब्रांच में मिलते हो, ब्रांच मैनेजर्स आर देयर आर रिलेशनशिप मैनेजर्स, एंड उनके ऊपर रीजनल हेड्स एंड जोनल हेड्स होते हैं, जोनल ऑफिसेज होते हैं. दे आर मेजरली ऑपरेटिंग अक्रॉस स्टेट्स, फील्ड टीम कह लो उनको, जिनका काम होता है जो भी कस्टमर उनके पास आए उनको सर्विस देना, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में उन्हें बताना, कुछ नया कुछ रोल आउट हुआ, कुछ नए टाइप का ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ आया, उनके बारे में बताना. Then there is this other side जिसको कहते हैं प्रोडक्ट टीम, who are actually building the infrastructure of banking system. तो इंजीनियर्स को when they usually hire, they put them in that kind of technology team जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काम कर रहे हैं. बैंकिंग को टेक्नोलॉजी सेवी करने का आजकल बहुत ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, आपने UPI ट्रांजेक्शन किया, लेट से 50,000 का, बट वो एक रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया. आप किसी को देना चाहते थे बट फ़ोन नंबर गलत डाला आपने और किसी और पर्सन को चले गया.
लॉस तो एक कस्टमर का हो रहा है बैंक का, एंड देयर इज समबडी जिसको पैसा मिल गया. अब इसका सोल्यूशन क्या है? देयर शुड बी सम वे जिससे वो पैसा वापस आ जाए. होना चाहिए, लीगल वे होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास गया है वो तो इन द फर्स्ट प्लेस ऑब्जेक्ट करेगा ही. मेरे पास पैसा आया था, व्हाई शुड आई रिटर्न? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर. तो देर इज दिस टेक्निक की समय रहते अगर आप फ्लैग करो कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या बाई मिस्टेक हुआ है ना, तो बैंक क्या करती है, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है. एंड अगर पूरा जस्टिफिकेशन दिख गया कि नहीं दिस हैपेंड बाय मिस्टेक ओनली और ये रिवर्स होना चाहिए, तो बैंक आपके पैसे आपको वापस दे देती है. तो दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देयर इज अ डिफरेंट टीम जो मुंबई में से ऑपरेट करती है ना. ICICI बैंक मुंबई इज द हेडक्वार्टर. तो आई वॉज प्लेस देयर हेडक्वार्टर में, एंड दिस फील्ड टीम इज अक्रॉस इंडिया. हर एक स्टेट में आपको ICICI बैंक के ब्रांचेस दिख जाएंगे, हर एक स्टेट, हर एक सिटीज़ में. तो मेजरली 2 साइड्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी साइड, एंड दूसरा साइड इज फील्ड का. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, थैंक यू सर. You're welcome. You shouldn't be hesitant. ऐसे घबराओ मत, है ना. मैं तो कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखता नहीं हूँ, तो फिर घबराने वाली तो कोई बात नहीं है. आराम से पूछो. पढ़ने का मन नहीं लगता है तो वो भी आप पूछ सकते हो. मुझे भी पढ़ने का मन नहीं होता था, इसलिए मैं लिखता था, मैंने बताया ना. एकदम आराम से, कंफर्टेबल. अगर कोई कंफ्यूजन है कि स्कूल के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 9th-10th में या फिर अभी 11th-12th में जैसे हो, तो कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, केमिस्ट्री अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए, ये सब सवाल आराम से पूछ सकते हो. Thank you, sir, for your insightful and inspiring word. Your journey from an ordinary student to IIT student, the corporate world, and then your dedication to art, education and social service has truly motivated all of us. जैसे कि सर ने कहा, if you want to achieve something greater in your life, consistency is very important. I think I hope कि हमारे बच्चे ये जो की एलिमेंट था उसको ज़रूर अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे. थैंक यू सो मच सर. अब मैं हमारे स्कूल की डायरेक्टर मिस मृदु पोगुला दीदी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर मिसेस सीता वर्मा दीदी जी, वाइस प्रिंसिपल पामेश्वरी कश्यप दीदी जी एंड मेंटर आदरणीय अवधेश भैया जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि वक्ता श्री रुपेश वर्मा जी को डायरी व मानव तीर्थ द्वारा प्रदत्त स्मृति उपहार देकर सम्मान करें. Please clapping बेटा. Thank you so much. Now it is time for vote of thanks. On behalf of Prerna Vidyalaya, I would like to express my sincere gratitude to our respected guests for sharing such valuable insights and inspiring thoughts with us today.
I also thank Adhish Bhaiya ji, our management team, teachers and dear students for their presence and support in making this session successful. Thank you all. Have a wonderful day ahead. Thank you so much.